Namaskar, I'm Shashi Tharoor and I join my colleagues in the Indian National Congress to express grave concern about the severe and worsening unemployment situation in our country. Salaried professionals represented by the All India Professionals Congress are being hard hit, as estimates show that 21 million salaried professionals have lost their jobs during the last 6 months. But the phenomenon began much earlier with demonetization, which affected the employment of daily wage workers, agricultural workers, micro and small and medium enterprises, a trend which has worsened dramatically during the lockdown of recent months. Already, before the lockdown, we had the worst unemployment levels recorded in 46 years. Now, we have the worst unemployment levels ever recorded in the country, affecting all sections of society. We demand 3 things in our Speak Up for Jobs campaign. First, the central government must immediately help unemployed youth and poor families by giving 6,000 rupees cash per month for 12 months in a sort of Nyay scheme as we had recommended from the very beginning. Second, the government must fill 10 lakh plus central government vacancies that have been allowed to remain open, even though the need for those jobs is acute. Stop cutting jobs in the government, stop privatizing successful and profitable PSUs, fill the vacancies. And our third request is that this BJP government must reverse its policies. It must support micro, small and medium enterprises in order to increase employment opportunities for the Aam Aadmi of our country. We demand jobs. We are speaking up for jobs. We need to save the people of India so they can work hard and hold their heads up in pride. Support Speak Up for Jobs campaign. Jai Hind. केंद्र सरकार बेरोजगार युवाओं, गरीब परिवारों को तुरंत न्याय 12 महीने के प्रति माह नगद 6,000 रुपये दे। दूसरी मांग हमारी है कि सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण और नौकरियों में कटौती करना बंद करे। केंद्र सरकार के 10 लाख से अधिक खाली पड़े पदों को भरे। और तीसरी मांग हमारी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए अपनी नीतियों में संशोधन करना चाहिए और लघु और मध्यम उद्यमियों का समर्थन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के 6 वर्ष के कार्यकाल में युवाओं को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। वायदा तो किया था हर वर्ष 2 करोड़ नए रोजगार देंगे। नए रोजगार देने तो दूर रहा, पहले से काम कर रहे थे उनके भी नौकरियां छूट गई। केंद्र सरकार की गलत नीतियां, जिसमें नोटबंदी को लागू करना, गलत तरीके से जीएसटी लागू करना, कोरोना संकट काल में लॉकडाउन गलत तरीके से लागू करना, उससे रोजगार देने वाले मध्यम और छोटे उद्योग और व्यवसाय पूरी तरह से बर्बाद हो गए। आज युवक मारे घूम रहे हैं रोजगार के लिए। हमारी मांग है कि तत्काल न्याय योजना लागू किया जाए, 6,000 रुपया प्रति माह नगद गरीबों में दिया जाए, सार्वजनिक उद्यम का निजीकरण बंद किया जाए, नौकरियां को घटाना उनको बंद किया जाए और केंद्र सरकार की 10 लाख नौकरियां जो रिक्त पद पड़े हैं उन पर तत्काल भर्ती किया जाए और केंद्र सरकार अपनी नीतियों को बदले और रोजगार देने वाले मध्यम और लघु उद्योग सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को सीधे मदद करें, तभी रोजगार युवकों को उपलब्ध होगा। जय हिंद। BJP seized the power on various fabricated issues, including the false promise to provide more than 2 crore jobs every year to the youth. The situation today is that, as per CMI estimate, following COVID-19 pandemic, the country is likely to lose
14 crore jobs in April alone, and of which 3 crores are concerned to youths. Due to callous and obstinate attitude of the BJP government, taking decisions such as demonetization, GST and unplanned lockdown, in the last 4 months around 2 crores people have lost their jobs, eventually jeopardizing the future of 2 crores families. It is the high time to launch Indian Youth Guarantee Program similar to European Youth Guarantee Schemes, or the Nyaya Yojana of the Congress Party, which Rahul Gandhiji pleaded, and he said government should provide 6,000 per month for 12 months to unemployed youth, and poor families should be implemented. BJP government has vastly aggravated the problem by privatization of public sectors, which should be stopped forthwith, and almost all the job creating institutions are closing one by one. Nearly more than 15 lakhs government jobs are vacant. They are not filling the vacancies. The railways have got nearly 3.5 lakhs vacancies. They are not filling. So about 35% of MSMEs, which provide employment to around 15 crores people, have since already closed. These MSMEs who have lost the race due to economic setback should be reviewed and provided budgetary support on the priority. Therefore, we demand central government must immediately give Nyaya scheme to unemployed youths plus poor families. Stop privatizing public state units and cutting jobs. Fill all 10 plus lakhs central government vacancies. A BJP government must revise its policies and support to SMEs in order to increase employment opportunities. Thank you. नमस्कार साथियों, देश भर में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। आज का युवा नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहा है। मोदी सरकार ने देश के युवाओं को प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, और मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज हमारा नौजवान नौकरी छोड़ने को मजबूर हो रहा है। हमारी केंद्र सरकार से 3 विशेष मांगें हैं। पहली मांग, केंद्र सरकार बेरोजगार युवाओं को, गरीब परिवारों को तुरंत न्याय योजना के अंतर्गत प्रति माह 6,000 रुपये 1 साल तक भुगतान करने का काम करे। मेरी दूसरी मांग है, सार्वजनिक उपकरणों का निजीकरण और नौकरियों में जो कटौती की जा रही है उसको तुरंत बंद करे। केंद्र सरकार 10 लाख से अधिक खाली पदों को तुरंत भरने की भी कार्य योजना बनाए। हमारी मोदी सरकार से तीसरी मांग है, भाजपा सरकार को बेरोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए नीति में संशोधन करना चाहिए और छोटे और मझले उद्योगों को समर्थन करके नौजवानों को पुनः नौकरी देने के लिए योजना बनानी चाहिए, ताकि देश की अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर आ सके। जय हिंद, जय कांग्रेस। आए दिन टीवी पे और अखबारों में और प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कि युवा आज बहुत ही परेशान है, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, केंद्र सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, और बहुत ही परेशानी में है। ऐसी स्थिति में हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि युवाओं को रोजगार के लिए अवसर पैदा किए जाएं। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में जो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने न्याय योजना की मांग की थी, जिसके तहत हर महीने 6,000 रुपये बेरोजगार युवाओं को मदद करने की बात कही थी, उसको सरकार माने और 1 साल, आने वाले 1 साल तक युवाओं को 6,000 प्रति माह उनको न्याय योजना के तहत मदद करे।
दूसरा, सार्वजनिक उपक्रम जो केंद्र सरकार लगातार बंद कर रही है और नौकरियों में जो कटौती कर रही है उसको बंद करे, उस काम को रोके। और आज देश में 10 लाख से ज़्यादा नौकरियों के पद खाली हैं, उनको भरे। स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने जिस तरह से सार्वजनिक उपक्रमों का निर्माण करके इस देश के युवाओं को रोजगार दिया था, देश की तरक्की के लिए योजना बनाई थी, उन योजनाओं के तहत जो कंपनियां स्थापित की थी, उन कंपनियों को आज नरेंद्र मोदी सरकार एक एक करके बेचती जा रही है। आज वो कहावत चरितार्थ होती जा रही है कि घर का निकम्मा बेटा होता है, वो अपने घर की संपत्ति को एक एक करके बेचता रहता है। हमारी मांग है कि सार्वजनिक उपक्रम जो लाखों लाखों हमारे युवाओं को रोजगार देते हैं, उनको बेचना बंद करें और नए उपक्रम बनाकर इस देश को बताया कि भाई हमने कोई काम देश के कल्याण के लिए किया है। केंद्र सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए अपनी नीतियों में संशोधन करे और लघु और मध्यम उद्योग जो हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कोई नीतियों में संशोधन करके उनको समर्थन दे, ऐसी हमारी मांग है। रेल भी बेची, प्लेन भी बेचे, बेच रहे सरकारी संस्थान। रेल भी बेची, प्लेन भी बेचे, बेच रहे सरकारी संस्थान। हालत ऐसी देश की कर दी कि रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है नौजवान। हाँ, मैं बात कर रहा हूं केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, कि जिन्होंने आज हमारे देश के हालात अपने तानाशाही फैसलों और गलत नीतियों की वजह से ऐसे कर दिए कि हमारे देश तबाही और बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। जुलाई अंत के अनुमान बताते हैं कि नोटबंदी, जीएसटी व लॉकडाउन की वजह से भारत में करीब 18 करोड़ मौजूदा नौकरियां खत्म हो रही। इससे देश में पहले से ही मौजूद लगभग 10 करोड़ बेरोजगारों की फौज को और बड़ा बना दिया। यह एक डरावनी आपदा है, ऐसी आपदा इसे कभी ना किसी ने पहले देखा ना सुना। नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन के बाद भारत में बेरोजगारों के भयंकर रूप से बढ़े हुए आंकड़ों का मतलब है कि करोड़ों लोग और उनके परिवार मुश्किल से जिंदा हैं। वे अनिश्चितता और निराशा से घिरे हुए हैं। उनके पास जो भी नकदी थी या कीमती सामान था या अनाज की बचत थी, वह लंबे समय पहले खत्म हो चुकी है, जिसके चलते भारत के बहुत से लोग आज कर्ज के अंदर घसते जा रहे हैं। भारत की कामकाजी उम्र की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो युवा है को अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, क्योंकि उनके आंखों के सामने उनके रोजगार छिनते जा रहे हैं, रोजगार खत्म होते जा रहे हैं। और यहां तक कि आप जानते हैं कि भाजपा सरकार की हालत यह है कि एलआईसी में 25% हिस्सेदारी बेचकर अपना खजाना भरना चाहती है। देश बिकने नहीं दूंगा, ये कहने वाली भाजपा सरकार ने आज 26 पीएसयू की लिस्ट जारी की है, ये सरकार बेचना चाह रही है। और एसबीआई की हालात ये है कि 30,000 कर्मचारियों की को बाहर करने की तैयारी की सरकार लगी हुई है। मेरी सरकार से अपील है कि ऐसे मुश्किल समय में अपनी नीतियों में संशोधन करके लघु और मध्यम उद्योगों को बचाने के लिए ठोस कदम उठाए, ताकि असंगठित क्षेत्रों को मजबूती मिल सके और युवाओं को रोजगार मिल सके। सरकारी संस्थाओं को निजीकरण सरकार को बंद करना चाहिए बिल्कुल, और उन विभागों में जो खाली पड़े पद हैं उनमें 10 लाख के करीब पद जो खाली पड़े हैं उनमें युवाओं को भरे, ताकि बेरोजगारी खत्म हो सके। और मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि गरीब परिवारों को और जो बेरोजगार हैं उनको तुरंत हर माह 6,000 रुपए राशि के लिए 1 साल के लिए सरकार उनके खातों में डाले। यही मेरी सरकार से प्रार्थना है। नमस्कार साथियों, ये आज का न्यूज़पेपर है। खबर है कि 21 मिलियन यानी कि लगभग 2 करोड़ लोगों के नौकरी इसलिए पिछले कुछ महीनों में ख़त्म हो चुका है। और ये हाल जो है संगठित क्षेत्र का है। इससे बहुत बुरा, बहुत बदतर हाल हमारे असंगठित क्षेत्र का है। उसमें भी करोड़ों लोगों के नौकरियां ख़त्म हो चुकी हैं, पेशा ख़त्म हो चुका है। हो सकता है आज़ाद भारत में इतना बड़ा आर्थिक और मानवीय संकट अब तक हमने देखा ना हो। करोड़ों लोगों के सामने एक बड़ा सवाल है, करोड़ों परिवारों के सामने, माता पिताओं के सामने एक
सवाल है कि कल का चूल्हा कैसे जलेगा, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, भविष्य का क्या होगा। और ये बेरोज़गारी का मार जो है सिर्फ पेट पे नहीं पड़ता, एक पूरे पीढ़ी को नष्ट कर देगा। ये एक पूरे पीढ़ी के सपनों को ख़त्म कर सकता है ये बेरोज़गारी का। ऐसे गंभीर परिस्थिति में राजनीति करना उचित नहीं है। ये समय राजनीति का नहीं है, ये समय जिम्मेदारी का है, ये समय ठोस कदमों को उठाने का है ताकि हम देश के गरीब और देश के नौजवानों के सपनों को हम बरकरार बना सकें। इसलिए हम इस सरकार को 3 सुझाव बड़ा विनम्रतापूर्वक और देश के हित को ध्यान में रखते हुए हम 3 सुझाव देना चाह रहे हैं। एक, कि हम जो न्याय की बात कर रहे थे, पैसे सीधे गरीबों के खाते में पहुंचाने की बात कर रहे थे, उसको आप प्लीज़ हमारे अपने अहंकार को छोड़कर, अपने राजनीति को छोड़कर हमारी बात माने और उसको लागू करें, सीधे गरीबों को पैसा देना चालू करें। दूसरा, जब बाकी सारे क्षेत्रों में से नौकरियां ख़त्म हो रहे हैं, एकमात्र आशा की किरण नौजवानों के सामने आज के दिन में PSUs, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में है। आप प्लीज़ उनका निजीकरण बंद कर दें और जो लाखों वैकेंसीज़ हमारे सरकारी कंपनियों में हैं उनको आप भर दें, ताकि इस अंधेरे में एक आशा की किरण के रूप से वो लोगों को नौकरियां दे पाए। और तीसरा हमारा विनम्र निवेदन है कि अभी तो अपने चंग बड़े उद्योगपति दोस्तों से, मित्रों से आप ध्यान हटाकर इस देश के जो छोटे और लघु उद्योग हैं, जहाँ नौकरियां, जहाँ रोज़गार का उत्पन्न होता है और जो आज भयंकर संकट में है, जिनका कमर टूटा पड़ा है, आप उनकी मदद करें। प्रधानमंत्री जी, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के नेता हैं, देश आशा और उम्मीद के साथ आपकी तरफ देख रही है। इस संकट के दौर में देश के गरीब, विदेश के नौजवान को आप निराश न करें। जय हिंद, जय भारत। भारत में बेरोजगारी लगभग 45 वर्षों बाद सबसे दुखदायी स्थिति में है। 1971 में बांग्लादेश व शरणार्थियों के पुनर्वासन के दौरान भी यह स्थिति नहीं थी। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने संस्थानों, कारखानों आदि का राष्ट्रीयकरण करके भूमिहीनों को जमीन तथा हरित और श्वेत क्रांति द्वारा रोजगार सृजन करके करोड़ों नौजवानों को सम्मानपूर्वक जीने का अवसर दिया था। ज्ञान, विज्ञान, उत्पादन, परिवहन, शासन, प्रशासन, संचालन, किसान, कारीगरी आदि रोजगार के प्रमुख स्रोत हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना काल के लॉकडाउन में मजदूरों को पूरा वेतन दिलाने का भरोसा दिलाकर बाद में मालिकों के ऊपर ढकेल कर अनाज छोड़ दिया, जिससे संगठित असंगठित क्षेत्र के लगभग 45 करोड़ मजदूर कर्मचारी भयंकर अंधकार में टहल रहे हैं। काम व उत्पादन एकाएक ठप होने से छोटे व्यापारी एवं कारखानेदार आर्थिक तंगी में विवश हैं। इसीलिए पहले ही राहुल गांधी जी ने कहा था कि इनको कर्ज नहीं, अनुदान तथा गरीब बेरोजगार युवाओं को न्याय योजना में 6,000 रुपये मासिक नगद दें, जिससे वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें। परंतु केंद्र सरकार चहेती कारपोरेट कंपनियों का लाखों करोड़ NPA राइट ऑफ करके भारी सहूलतें दे रही है और दूसरी ओर आदि के रेल, परिवहन, माइंस, ऊर्जा आदि के व्यापक रोजगार सृजन करने वाले संस्थानों को निजी हाथों में आपदा को अवसर बनाकर सौंप रही है। लोकसभा चुनाव 2019 के पहले रेल विभाग में लगभग 1,38,000 पदों का विज्ञापन करके वोट नोट बटोरने के बाद युवाओं द्वारा ताली थाली का पलटवार करने पर 15 दिसंबर को रोजगार परीक्षा लेने को कहा है। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि केंद्र सरकार बेरोजगार युवाओं व परिवार को 6,000 रुपये मासिक नकद तथा लघु मध्यम वर्ग के व्यापारियों को कर्ज नहीं, अनुदान तत्काल दे और सरकारी कारखानों और संस्थानों को चहेती निजी कंपनियों के हवाले करना बंद करके रिक्त 10 लाख पदों पर तत्काल भर्ती प्रारंभ करे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। नमस्कार। आज भारत में बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, युवा परेशान हैं और
स्पीक अप फॉर जॉब्स कार्यक्रम के तहत हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि भारत सरकार तुरंत न्याय योजना, जिसमें हर महीने बेरोज़गारों के खाते में 6,000 रुपये दिए जाएं और इस न्याय योजना को तुरंत लागू किया जाए। हमारा भारत सरकार से ये भी निवेदन है कि जो सरकारी उपक्रम हैं उनको निजी हाथों में ना बेचा जाए। जो LIC का 25% शेयर बेचने की तैयारी है उस पर तुरंत रोक लगाई जाए। BSNL को बचाया जाए। बेरोज़गारी को दूर करने के लिए जो MSSE हैं, छोटे लघु उद्योग जो हैं, उनकी तरफ भारत सरकार ध्यान दे, उनको प्रोत्साहन दे। और हमें उम्मीद है कि भारत सरकार कुछ ऐसे कार्यक्रम लेकर के आए जिसमें युवाओं की बेरोज़गारी दूर करने के लिए कोई ना कोई पैकेज हो, जिसमें युवाओं को काम मिल सके, जिसमें जितनी भी इंडस्ट्री इफ़ेक्ट हुई है, जो छोटे दुकानदार इफ़ेक्ट हुए हैं, उन सब को भी राहत मिल सके। और युवा कांग्रेस द्वारा चलाया गया स्पीक अप फॉर इंडिया एंड स्पीक अप फॉर जॉब्स कार्यक्रम में मैं भी अपने आप को शामिल करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि भारत सरकार आने वाले समय में बेरोज़गारी को दूर करने के लिए कारगर कदम उठाएगा। जय हिंद। साथियों, आज की आवाज है रोजगार और न्याय हमारा जन्मगत अधिकार है। जो सरकार रोजगार नहीं दे सकता है वो सरकार को सरकार में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले देश की 93% मजदूर, जो कुल जनसंख्या का 47-12 करोड़ और जिनका सबसे ज्यादा आर्थिक व्यवस्था के लिए योगदान है, देश में 2014 में मोदी सरकार आने के बाद कभी विमुद्रीकरण, GST, निजीकरण, विदेशी पूंजी विनियोग का नाम पर उन वर्गों को सिर्फ निराशा, हताशा और धोखा मिला। कोरोना में लॉकडाउन, शटडाउन के कारण संगठित क्षेत्र में 21 मिलियन रोजगार को नुकसान, 139 मिलियन प्रवासी मजदूर का रोजगार का हानि, क्षुद्र मध्यम शिल्प बंद होने के कारण करोड़ों मजदूर का रोजगार का हानि और दैनिक मजदूर का आत्महत्या का संख्या वृद्धि मोदी सरकार का विफलता का दर्शाता है। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार श्रम कानून को बदलाव लाके श्रमिक का रोजगार, स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा का साथ खिलवाड़ कर रहा है। 10 लाख खाली पोस्ट जो पड़ा है उसको नहीं भरते हैं और देश का सरकारी उद्योग को निजीकरण करने के लिए कोशिश कर रहा है, देश का संपत्ति को बेच रहा है। हमारा देश में 65% जनसंख्या युवा है और हमारा देश का आने वाला काल है, भविष्य है, जिनके लिए ये सरकार का कोई ठोस नीति नहीं है। राहुल गांधी एक ही नेता है जो देश का बेरोजगार, प्रवासी श्रमिक, अर्थनीति, कोरोना संक्रमण की परिस्थिति और युवा का रोजगार के बारे में बार बार आवाज बुलंद करके मांग कर रहा है। युवा का रोजगार के लिए और गरीब को न्याय देने के लिए जो 70,000 रुपीज पर सालाना देने के लिए मांग कर रहे हैं। चलिए आज हम सब मिलके ये आवाज को और बुलंद करेंगे और आज की ये आवाज है, सरकार को अगर रहना है तो सबको रोजगार दो, गरीब को न्याय दो, यही आज का नारा है, देश की नारा है। धन्यवाद। साथियों, देश की अर्थव्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस कदर बिगाड़ा है, आपने देखा कि चाहे नोटबंदी की बात हो, चाहे GST को गलत ढंग से इम्प्लीमेंट करने की बात हो, देश में बेरोज़गारी बढ़ती ही चली जा रही है। लॉकडाउन के समय में 41 लाख रोज़गार खत्म हो चुके हैं। हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की बेरोज़गारी की दर पूरे देश में सबसे ज़्यादा 33.5% हो चुकी है। सरकार को जवाब देना होगा। हमारी मांगे हैं कि हर बेरोज़गार को
हर गरीब परिवार को प्रति माह 6,000 रुपया दिया जाना चाहिए। देश में खाली पद 10 लाख के करीब रिक्त पद पड़े हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से भरना चाहिए। देश की बेरोजगारी दूर करने के लिए देश के छोटे और मध्यम वर्ग के उद्योग हैं, उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वहाँ पर और रोजगार मिल सके। आज की ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे हमारे हरियाणा राज्य की हो, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मुहैया कराए। देश के युवाओं को रोज़गार चाहिए, हरियाणा के युवाओं को रोज़गार चाहिए। स्पीक अप इंडिया। आज हमारा देश एक बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है और जो भाजपा सरकार की नीतियां हैं उसने खास तौर से हमारे नौजवान वर्ग की कठिनाइयां और बढ़ा दी। ये देश सबसे नौजवान देश विश्व का है। हमारे पास एक ऐसी ताकत है युवाओं की जो इस देश को बहुत आगे ले जा सकती है, मगर अगर इस युवा शक्ति को सही दिशा और सही रोजगार और आमदनी के जरिए नहीं दिए तो ये देश के लिए, भारत के लिए घातक हो सकता है। मेरी मांग है इस भाजपा सरकार से कि अपनी नींद से जागे और तुरंत जो कांग्रेस पार्टी ने कहा था एक न्याय योजना जिसमें आर्थिक सहायता इस कोरोना और इकॉनमी जो पूरी खराब हुई रही व्यवस्था, उस समय उनकी जरूरत है, तुरंत उपलब्ध कराएं। हमारे जो पीएसयूज हैं उनको एक तरफ बेचा जा रहा है, उनके यहाँ जो नौकरियां उसमें हैं वो सब खाली रिक्त पद हैं। सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए, जितने रिक्त पद हैं उनको तुरंत भरना चाहिए। और एक और जो हम लोग कहते आए हैं कि जो हमारे मध्यम, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जो रोजगार से और रोजी रोटी से जो मिडिल क्लास है उनसे जुड़ा हुआ है, उसमें प्रोत्साहन दें, उसमें ज्यादा निवेश करवाएं, उनको आगे बढ़